A very good day, my dear students, and welcome to Coachify CAT. I am Mohit, mentor of thousands of students. So CAT is near. I believe आपकी प्रिपरेशन फुल कैपेसिटी में, फुल डेडिकेशन के साथ में बहुत अच्छे से हो रही है। आप अपनी प्रिपरेशन में जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। आई ट्राई टू एड्रेस एज मच एज पॉसिबल। विल सी हम कैसे मिल करके उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सफिशिएंट टाइम हमारे पास में अवेलेबल है। ऑल वी नीड इज अ गाइडेड प्लान। बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड फॉलो द प्रोसेस. Also, if you're enrolled in our CAT pre-recorded course or in our test series, you must be knowing that you are provided with one-on-one mentoring sessions with me. ये mentoring sessions आप इस week onwards till CAT paper schedule कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है, अपने डैशबोर्ड पे आना है, claim one-on-one session पे क्लिक कर देना है। जितने भी स्लॉट्स हैं वो यहाँ विजिबल हैं, आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग इन अचीविंग योर गोल्स, जो भी चैलेंजेस आप अपनी प्रिपरेशन में फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल ड्रिल डाउन तरीके से यहाँ पे फिल कीजिए। आई विल हैव अ गुड लुक बिफोरवर्ड्स एंड वी कैन हैव अ वेरी प्रोडक्टिव सेशन। एक स्टेप आप ले लो अपनी प्रिपरेशन में, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड देन टुगेदर विल क्रैक दिस कैट पेपर, राइट? So see you in the next mentoring session. Before we begin our today's puzzle, which belongs to quant-based puzzle category, quant-based puzzle topic, I would like to tell you quant-based puzzle जो है, इसको अगर आपको बहुत अच्छे से क्रैक करना है तो I suggest कि आप on an average 1 से 2 सुडोकू puzzles everyday basis पर solve करें। इसको आप एक तरीके से रिफ्रेशिंग एक्टिविटी के जैसे लें, जिसको आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको ये करना है, वेबसाइट पे आना है, यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, देन इन दैट केस यू विल फाइंड आउट सुडोकू चैलेंज। सिंपली आप अपना लेवल ऑफ डिफिकल्टी वगैरह सेट करके and you can have it here, right? So now let's begin our today's puzzle, which is from CAT 2023 paper. If you are a new viewer, no need to take the screenshot, no need to pause the video. There is a link attached in the description of the video that will take you to the PYQ zone. Firstly, attempt it on your own and then do watch the explanation there itself. If you are already a part of Coachify family, then you must be knowing this, right? So now the very first part of our solving is right interpretation of the information. तो सबसे पहले हमें interpret करना है क्या है। तो मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देता हूं इसमें क्या हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट 4 डीलर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी विच इज evaluating their sales performance. So they are selling 2 variants of ACs. Number one is windowed AC type, the other one is split AC type. These 2 variants are further divided into 2 subcategories. One is inverter AC, the other one is non-inverter AC, right? So we are talking about 4 dealers और ये हमारे जो हैं types हैं ACs के, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। Now what we are doing is we are provided with some information points with the help of which we have to find out किस डीलर ने कौन से AC वेरिएंट के कितने यूनिट्स को सेल किया है। This is what we have to find out. So now we understood, we have solved enough number of puzzles on quant-based puzzle topics, so we must be knowing that हमें table बनानी होती है and we have to fill that table. So now what should be the variables in that table? So I have made a table for you. इसको एक बार फटाफट देखो. So now we are talking about 2 types of ACs, window, split. 2 further subcategories, inverter, non-inverter, उनका टोटल आ जाएगा विंडो के लिए. Similarly, inverter, non-inverter, उनका टोटल आ जाएगा स्प्लिट के लिए, राइट? 4 डीलर्स और ये यहाँ पे टोटल आ जाएगा इन्वर्टर का, नॉन इन्वर्टर का टोटल हो जाएगा विंडो के लिए, एंड सिमिलरली फॉर स्प्लिट एसी टाइप। ये हमारी इंफॉर्मेशन है जिसे हमें पढ़ना है और अब हमें इस टेबल को फिल करना है। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव, राइट? सो लेट्स क्विकली बिगिन दैट. An air conditioner AC company has 4 dealers, D1, D2, D3 and D4 in a city. It is evaluating sales performances of these dealers. The company sells 2 variants of ACs, window and split, as we have discussed. Both these variants can be the inverter type or non-inverter type. ये सब category हो गई है. It is known that of the total number of ACs sold in the city, 25% were of window variant, while the rest were of split variant. Among the inverter ACs sold, 20% were of window variant. ये information later part में कहीं यूज में आएगी, अभी के लिए इसका कुछ भी यूज नहीं ले सकते, आगे बढ़ जाते हैं. The following information is also known. Every dealer sold at least 2 window ACs. इसको भी अभी काम में नहीं ले सकते. We cannot use it now. Why? भाई आप ये कह रहे हो कि at least exact number तो है नहीं. अगर exact number होता तो हम यहाँ लिख लेते 2 2 2 2 खत्म. लेकिन at least है वो, तो अभी इसका हम कुछ नहीं कर सकते. फिलहाल के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा. D1 sold 13 inverter ACs while D3 sold 5 non-inverter ACs. इसको देखते हैं कैसे काम में ले सकते हैं. So D1 sold 13 inverter ACs. Inverter ACs का सम कितना है D1 के लिए? 13, यानी this plus this is 13. That means अगर मान लीजिए ये मैं एक बार के लिए कुछ P लेता हूं, so this becomes 13 minus P. Simple. And D3 sold 5 non-inverter. तो अगर मान लीजिए ये आपका कुछ एक Q है, so this will be 5 minus Q. Simple. आगे बढ़ जाइए. Now ये information point हमने काम में ले लिया है, ठीक है? A total of 6 window non-inverter ACs. Window, नॉन इन्वर्टर, इनका सम कितना है? 6.
एंड 36 स्प्लिट इन्वर्टर एसीज वर सोल्ड इन द सिटी। इन्वर्टर हैं और स्प्लिट हैं, कितने हैं? दिस इज 36। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, ये भी काम में आ गया। Then the number of split ACs sold by D1 was twice the number of window ACs sold by it. We are talking about D1. तो D1 ने split AC जितने सेल किए हैं टोटल, we are talking about total, right? We are not talking about inverter, non-inverter specifically. टोटल के बारे में बात हो रही है। The number of split AC sold by D1 was twice the number of window AC sold by it. तो D1 का टोटल अगर अपन देखें विंडो के लिए एक बार के लिए, सो कुछ एक x ले लें, सो दिस मस्ट बी 2x। सिंपल, आगे बढ़ जाइए, ये भी हो गया। Then D3, D4 sold an equal number of window ACs. D3 and D4 के बारे में बात हो रही है। विंडो AC जितने इन्होंने सेल किए, यानी हम टोटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कितना दे रखा है हम लोगों को? इक्वल दे रखा है। एंड दिस इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ सिमिलर AC सोल्ड बाय D2। यानी अगर मान लीजिए इसको हम A बोलते हैं, ये भी A हो जाएगा, दिस विल बी 3A। ठीक है, देन ये पॉइंट भी काम में आ गया। नाउ D2 एंड D3 वर द ओनली वंस हु सोल्ड विंडो नॉन इन्वर्टर ACs। तो केवल विंडो में नॉन इन्वर्टर सेल करने वाले कौन हैं? तो केवल D2 एंड D3 ने सेल किया, यानी ये नंबर 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये A हो जाएगा, क्योंकि A + 0 विल बी A, राइट। और दूसरा मतलब इसका ये हुआ कि 0 + P दैट शुड बी P, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 2P। और अगर ये 2P है, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन विल बी एबल टू फाइंड आउट नॉन इन्वर्टर स्प्लिट AC टाइप फॉर D1। सो 2P माइनस दिस दैट बिकम्स 3P - 13। ठीक है, यहां तक की जानकारी हमें मिल गई है इतने पार्ट से। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ दीज ACs सोल्ड बाय D2, कौन से के बारे में बात हो रही है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट D2 and D3 वर द ओनली वंस हु सोल्ड विंडो नॉन इन्वर्टर। वी आर टॉकिंग अबाउट विंडो एंड नॉन इन्वर्टर। द नंबर ऑफ दीज ACs सोल्ड बाय D2 was twice the number of these ACs sold by D3। तो D3 ने अगर मान लीजिए ये वाले AC Q सेल किए हैं, तो D2 ने कितने किए हैं? सो दिस इज 2Q। सिंपल, इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इट, यू आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q बाय, देखो ना इसका सम कितना है? 6 है। ये कितना हुआ? 3Q। 3Q की वैल्यू अगर 6 है तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यानी ये कितना हो गया है? 4, और ये कितना हो गया है? 2। सिंपल, ये यहां तक की बातें जो है ये अपने को समझ में आनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन ने पूरा काम में ले लिया। D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट इन्वर्टर ACs। स्प्लिट में इन्वर्टर के बारे में बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि D3 एंड D4 ने इक्वल सेल किया। तो अगर एक बार के लिए मैं इसको B मान लूं, तो ये भी कितना हो जाएगा? B हो जाएगा। एंड देन इट सेज दैट एंड दिस नंबर वाज हाफ द नंबर ऑफ सिमिलर ACs सोल्ड बाय D2। तो यानी ये कितना हो जाएगा? 2B हो जाएगा। तो आई होप यहां तक की इंफॉर्मेशन जो है उसको करेक्टली आपने इंटरप्रेट किया होगा और टेबल को इतना फिल कर लिया होगा। अब हमें थोड़ा सा और जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये वाली इन्फॉर्मेशन है, या इसमें से ही कुछ और इंटरप्रिटेशन अगर हमारा बच रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट रह गया, इनको कंबाइन करके देखना है कि और इसको आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये टेबल पूरी फिल होगी ही, जितना मैक्स फिल हो सकता है उतना करेंगे, देन विल गो विद क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ Q की वैल्यू 2 थी, ये 4 हो गया था क्योंकि ये 2Q था। तो यहाँ पे हम अगर Q की वैल्यू 2 रख देंगे, सो दिस बिकम्स 3। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पॉइंट जो है इसको अपन काम में लेते हैं। वी आर सेइंग दैट अमंग द इन्वर्टर AC सोल्ड 20% वर ऑफ द विंडो। जितने भी इन्वर्टर AC सेल हुए हैं, 20% कैसे हैं? विंडो वेरिएंट है। यानी रिमेनिंग 80% जो है वो कैसे हैं? 80% स्प्लिट वाले वेरिएंट हो जाएंगे आपके। यानी ये जो नंबर 36 है, ये कितना होगा? 80%, यानी 4/5 ऑफ टोटल इन्वर्टर AC सोल्ड। तो ये बन जाता है 9, 5 9 45। तो टोटल इन्वर्टर ACs अगर अपने 45 हैं, उसमें से 36 यहाँ आ गए, सो दैट मीन्स दिस शुड बी 9। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन से दैट टोटल विंडो AC सोल्ड, ये कितना हो जाता है? 9 + 6 दैट बिकम्स 15। तो आप देखो 15 आपके टोटल विंडो वाले हैं, राइट। और आपने एक बात और यहाँ पे देखी है, 25% जो है वो विंडो वेरिएंट है, बाकी के स्प्लिट वेरिएंट है। तो टोटल अगर अपने को विंडो का मिल गया, विच इज कितना? 25%, यानी 1/4 ऑफ टोटल AC सोल्ड इज विंडो, विच इज 15। तो टोटल कितना हो जाएगा? दिस बिकम 60। तो अगर ये 15 है तो ये कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए, राइट। 45 + 15 बिकम 60। और अगर ये 45 है, इसमें से 36 हटा दीजिए, सो नॉन इन्वर्टर की वैल्यू कितनी आ जाती है? 9। तो यहां तक की जानकारी जो है ये अपन ने पूरी ले ली है। अब इसके आगे बढ़ना है। अब अपन इस पॉइंट को काम में लेंगे। एवरी डीलर सोल्ड एटलीस्ट 2 विंडो ACs। ठीक है, देखो तो अगर मान लीजिए A की वैल्यू मिनिमम अपन 2 लेते हैं, तो 2 लिया तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, 4। दिस बिकम्स 6 एंड 4, सॉरी दिस इज 2 2 4 एंड दिस इज 6, करेक्ट। 6 + 4 इज 10, रिमेनिंग इज 5। तो P की वैल्यू 5 हो जाएगी, इस केस में पॉसिबल है, राइट। नाउ अगर A की वैल्यू को अपन 3 ले लें, तो 3 3 6
and 9 plus 6 becomes 15. In that case P will be 0, which is not possible. आप कह रहे हो हर डीलर ने एटलीस्ट 2 विंडो एसी तो सेल किए ही हैं, यानी A के लिए एकमात्र वैल्यू जो पॉसिबल है दैट इज व्हाट, इट इज 2. सो अब यहाँ पे अपन इसको रिप्लेस कर देते हैं. सो दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 6, ये भी अपना 2 हो जाता है. देन दिस इज 15, दिस इज 10, सो P की वैल्यू 5 हो जाती है, यानी ये हो जाएगा अपना 5. और 13 minus 5 दिस बिकम्स योर 8, राइट. एंड ये 5 है तो इसका डबल यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है. दिस इज P की वैल्यू 5 है, 15 minus 13 दैट बिकम्स 2. इतनी जानकारी अपने को प्राप्त हो जाती है. अलॉन्ग विद दैट B को भी अपन सॉल्व कर पाएंगे. देखो, सो 2 3 4, राइट, 4 भी हो गया. 36 में से 8 आप हटा दीजिए, सो दैट बिकम्स 28. 28 डिवाइड बाय 4, B की वैल्यू आ जाती है 7. भाई 36 में से 8 हटाया, रिमेनिंग इज 28, और ये कितना है 4B, तो 4B अपना इसके बराबर है, तो B की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई है, सिंपल. तो अब अपन इसको रख लेते हैं. सो दिस इज 7, दिस इज 7, राइट, एंड ये हो जाएगा आपका 14. दैट्स इट. तो इतना पार्ट जो है हमने सॉल्व कर लिया. 7 plus 3 दैट बिकम्स 10. ये भी अपने को मिल गया है. नाउ क्लियरली वी कैन सी दैट ये जो D3 के लिए टोटल आ रहा है यहाँ पे दैट इज 2. ये 2 ऑलरेडी है तो दिस मस्ट बी 0. ये 6 है, ये 4 है तो दिस मस्ट बी 2. ठीक है. 5 to 7 to 9 करेक्ट है. 4 to 6 ये भी करेक्ट है. ये भी पूरा करेक्ट हो गया. ठीक है. अब इसके बाद देखते हैं आगे और इसको कितना सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने ये पॉइंट्स भी काम में ले लिए हैं. 25% विंडो वेरिएंट, 80% ये हो गया. ठीक है. और ये भी पूरा हो गया, ये पॉइंट भी काम में आ गया, बाकी कुछ बचा नहीं. तो हाँ, मतलब अब अपन इसको इतना सॉल्व कर पाएंगे. अब इसके बियॉन्ड अपने को क्वेश्चन स्पेसिफिक जाकर के देखना पड़ेगा कि कैसे अपन इस टेबल को काम में ले सकते हैं. तो लेट्स क्विकली बिगिन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. हाउ मेनी स्प्लिट इन्वर्टर एसीज डिड D2 सेल? D2 ने कितने स्प्लिट इन्वर्टर एसी सेल किए हैं? लेट्स क्विकली चेक इट. सो स्प्लिट इन्वर्टर एसी के बारे में बात हो रही है, D2 के बारे में बात हो रही है. करेक्ट आंसर विल बी 14. What percentage of AC sold were of non-inverter type? तो टोटल AC कितने सेल हुए हैं? 15 plus 45 that becomes 60. और इसका कितना परसेंट जो है वो नॉन इन्वर्टर है? तो नॉन इन्वर्टर यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 6. 9 plus 6 that becomes 15. 15 upon 60 यानी 1/4, which means 25%. C option is the right answer. What was the total number of ACs sold by D2 and D4? D2 and D4 का टोटल जो है उसका सम करना है अपने को. तो D2 का, अच्छा देखो, अब फर्स्ट ग्लैंस पे अगर अपन देखते हैं तो आपको लगता है यार कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ये वैल्यूज तो मिसिंग है. बट आपको समझना है कि आप D2 एंड D4 का टोटल निकाल रहे हो, उन्हीं का टोटल निकाल रहे हो जिनकी वैल्यूज आपकी मिसिंग है. यानी 9 में से अगर मैं 3 plus 2 हटा दूं तो दैट बिकम्स 5. यानी इन दोनों का सम कितना हो जाएगा नॉन इन्वर्टर के लिए? दैट विल बी 5. सिमिलरली 45 में से अगर मैं 10 एंड 10 ये हटा दूं 20, सो दैट बिकम्स 25. तो मेरा ये वाला, अब मुझे सम किसका बताना था? टोटल का बताना था. तो यानी टोटल स्प्लिट के केस में देख लेता हूं मैं D2 एंड D4 के लिए. 20 माइनस कर दो तो ये तो हो गया अपना 25. ठीक है. सिमिलरली यहाँ तो अपन निकाल ही पाएंगे. तो ये हो गया 6 plus 2 दैट बिकम्स 8. तो 25 plus 8 बिकम्स 33. करेक्ट आंसर इज 33. Which of the following statements is necessarily false? गलत है ही, वो बताना है अपने को. देखो, so D2 sold the highest number of ACs, तो D2 का नंबर हाईएस्ट होगा. नेसेसरी फॉल्स के बारे में देख रहे हैं, इस पे बाद में आते हैं, पहले देखते हैं. D4 sold more split ACs as compared to D3. D4 ने स्प्लिट ACs ज्यादा सेल किए हैं D3 के कंपैरिजन में. ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि दिस इज, हाँ नहीं कह सकते इसको भी. आगे बढ़ते हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट D1 एंड D3 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट एसीज. तो D1 एंड D3 ने इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सेल किए. यस, हमें बताना है नेसेसरी फॉल्स. ठीक है. तो D1 एंड D3 टुगेदर सोल्ड मोर एसीज एज कंपेयर टू D2 एंड D4 टुगेदर. तो D1 एंड D3 का टुगेदर का सम करते हैं अपन. सो दिस इज 5 plus 2 7, 10 एंड 10 20, तो 27 हो गया ये. ठीक है. एंड D2 एंड D4 टुगेदर निकालते हैं. तो D2 एंड D4 टुगेदर ये हमने आई गेस ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था. दिस वाज कमिंग आउट एज, यहाँ पे किया था हमने, दिस इज कमिंग आउट एज 33. तो ये नेसेसरली फॉल्स है. डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. If D3 and D4 sold an equal number of ACs, then what was the number of non-inverter ACs sold by D2? D3, D4 के टोटल को सेम करवाना है. तो D3 का टोटल कितना है अपना? तो D3 का टोटल हो जाता है 2 plus 10 यानी 12. और D4 के टोटल को भी अगर अपने को 12 लेकर के आना है तो ये 2 ऑलरेडी है, यानी इसको 10 रखना पड़ेगा अपने को. ठीक है. अब क्वेश्चन ने अपने से क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टर एसी सोल्ड बाय D2. तो D2 के नॉन इन्वर्टर एसी, आप एक चीज देखो, ये अगर 10 है, ये 7 है, तो ये 3 हो जाएगा. अच्छा, 3 3 6 एंड 2 8, तो ये 1 हो जाएगा.
अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टर एसीज सोल्ड बाय D2। जल्दबाजी में 1 नहीं देखेंगे हम, क्योंकि हमें दोनों का सम करना है ना। तो 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 + 1 becomes 5। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो हमने देखा कितना आसानी से हमने इस सेट को सॉल्व किया। सफिशिएंट टाइम है, हैव फेथ इन योरसेल्फ, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल यू नीड इज अ गाइडेड प्लान, दैट्स इट। यू आर केपेबल ऑफ अल्टीमेट थिंग्स। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।